Hello everyone, my name is Rini Singhal and today I will take the topic that is calcium channel blockers. So, in this lecture, this is lecture number 11 and in this lecture we will discuss about the introduction part of the calcium channel blocker. It means what are calcium channel blockers, what just they do. So, in this we will include the introduction part, we will include the classification, how these calcium channel blockers are get classified according to their chemical structure and the mechanism of action. How do these calcium channel blockers work? Okay. So, this lecture is all about the calcium channel blocker, their introduction part, classification and mechanism of action. So, let us start with the introduction part of the calcium channel blocker. Sometimes this calcium channel blocker are also known as calcium channel antagonist, and this term was given by Gottfried. Means the Gottfried was a scientist who coined the term calcium channel antagonist or calcium channel blocker. So, this calcium channel blocker, what do they do? Basically, we all know that the calcium ion concentration is responsible for the contraction. So, basically from the name we can say that it reduces or it inhibits the contraction or it causes the dilation or vasodilation. So, the contraction of the cardiac and vascular smooth muscle is dependent on extracellular calcium concentration, and the transport of calcium into the cardiac or vascular muscle is regulated by voltage gated channels. So, basically the contraction of the cardiac muscle is responsible for the cardiac muscle is dependent upon the extracellular calcium ion concentration, and to transport the calcium into the cardiac cell or vascular smooth muscle, it is regulated by voltage gated channels. So, these calcium channel blockers, what do? They interact with, there are 4 types of calcium channel blockers, and this calcium channel blocker basically interacts with L type channels and reduces the calcium flux and through the channels and causes the relaxation of arteriolar smooth muscles. These this L type of calcium channels basically present in the smooth muscles and have the negative inotropic, if the calcium channel blockers are having negative inotropic effect. So, these calcium channel blockers, the contraction of cardiac and vascular smooth muscle is dependent on the concentration of the calcium ions, and this transport of calcium ion in the cardiac vascular smooth muscle is regulated by voltage gated channels. And this calcium channel blocker, because we want to dilate the blood vessels, तो सो हमें क्या करना है, कॉन्स्ट्रिक्शन को या कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट करना है. तो हमारे जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो एल टाइप चैनल्स से इंटरैक्ट करके उसको ब्लॉक करते हैं, जिससे कि कैल्शियम आयन की जो एंट्री होती है कार्डियक सेल्स के अंदर वो इनिबिट हो जाती है, एंड इट विल कॉज द रिलैक्सेशन ऑफ आर्टीरियोलर स्मूथ मसल्स. ओके, सो हाउ डू वी क्लासीफाई द calcium channel blockers. So, these calcium channel blockers on the basis of its structure we can classify into 3 categories: phenylalkylamines, 1,4-dihydropyrimidines and 1,4-dihydropyridines and benzothiazepines. Here we can see that these classes are subdivided into first generation and second generation. So, these first generation drugs, what are first generation and what are second generation? जो first generation की drugs हैं, they are the original formulation of verapamil, nifedipine, nicardipine and diltiazem. And what is the need? Why this second generation we have developed? Because these second generation drugs are better in their pharmacokinetic profile, they are better in their duration of action, and they are enhanced vascular selectivity. So, this is an improved form, this is a modified form. So, we can classify
So I am repeating that classification. We can classify the calcium channel blocker according to their chemical structure into the 3 classes, and these 3 classes are further sub classified according to their generation. So these phenylalkylamines which is having the which are phenylalkylamine derivative, phenylalkylamine moiety. The example of first generation drug is most common verapamil, and second generation is anipamil and bepredil. And I am again explaining why second generation is the modified form of first generation. Second generation drugs are better in their pharmacokinetic profiles, they are better in their efficacy, they are better, they are having enhanced vascular selectivity. So these second generation drugs are more effective as compared to the first generation drug. So the example, the second chemical class is 1,4-dihydropyridine. The example of first generation drug, first generation means which is originated from the original formula. So they are originated. Second generation drug means amlodipine, phalodipine, nicardipine, they are originated from the nifedipine. Okay. So this one example of 1,4-dihydropyridine is nifedipine, and the second generation means these drugs are derived from basic nifedipine. The examples are amlodipine, phalodipine, isradipine and nicardipine. The third class on the basis of chemical structure is benzothiazepine or benzothiazepine derivative. Okay, so these benzothiazepine, the first generation drug is diltiazem, and second generation drug is still in clinical trials and is yet to come, but currently there is no second generation drug available in benzothiazepine derivative. Okay. So these are the classes. We will in the next slides we will discuss about the structure and uses. ओके सो जब जो हमने क्लासेस पढ़ी कि ये 3 क्लासेस हैं, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह काम करते हैं, वेरापामिल है, निफिडिपिन है, डिल्टियाजिम है, तो ये काम कैसे करते हैं, इनका मैकेनिज़्म क्या है. तो इनका जो मैकेनिज़्म है, इनका मैकेनिज़्म हम इस स्लाइड में बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमने फर्स्ट स्लाइड में ये डिस्कस किया कि जो भी कॉन्ट्रैक्शन है या कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम आयन. हमें क्या करना है, रिलैक्सेशन. तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी वांट टू इनहिबिट द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन. हमें कैल्शियम आयन की एंट्री कार्डियक सेल्स के अंदर इनहिबिट करनी है या उनकी एंट्री को बंद कर देना है. ठीक है. तो अब इसके अंदर जो हमारा नॉर्मल स्टेट की अगर हम बात करें कि नॉर्मली एक कार्डियक सेल के अंदर क्या काम हो रहा है, नॉर्मली डीपोलराइजेशन की इम्पल्स आती है तो ये एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं एंड कैल्शियम आयन, इस गेट को ओपन होने की वजह से जो कैल्शियम आयंस हैं वो कार्डियक सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं एंड दिस कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है एंड कैल्शियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन. तो जो कार्डियक मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं. अब हमें चाहिए कि हम इस कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्सेशन में बदल दें. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस स्टेप को इनहिबिट करना पड़ेगा. इस स्टेप को इनहिबिट करना पड़ेगा मतलब इस गेट को हमें ब्लॉक करना पड़ेगा. मान लीजिए आपका घर में कोई अननोन गेस्ट है, वो आप उसको नहीं आने देना चाहते, तो आप क्या करेंगे, आप उस गेट को बंद कर देंगे ताकि वो जो जो आप चाहते हैं कि एंट्री ना ले वो एंट्री नहीं कर पाएगा. तो अब हम ये चाहते हैं कि इस गेट से कैल्शियम आयन की एंट्री बंद हो जाए. तो हमने क्या यूज़ किया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एल टाइप के वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स की अल्फा 1 सब यूनिट से बाइंड कर लेते हैं. यहाँ पे इट इज़ मेंशन दैट इट बाइंड्स टू द अल्फा 1 सब यूनिट ऑफ एल टाइप कैल्शियम चैनल. यानी कि इन्होंने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ने एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स की अल्फा 1 सब यूनिट के साथ बाइंड किया एंड इस चैनल को ब्लॉक कर दिया. अब जब ये चैनल ब्लॉक हो गए तो कैल्शियम आयन की एंट्री ओब्वियसली अब नहीं हो पाएगी. अब जब कैल्शियम आयन की एंट्री यहाँ पे इनहिबिट हो गई, कैल्शियम आयन यहाँ पे एंटर नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया, तो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कार्डियक सेल के अंदर या कार्डियक मायोसाइट के अंदर डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. अब जब ये कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई तो ओब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन या जो मसल की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो गई. इट मीन्स यहाँ पे आपको क्या मिल गया, डायलेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन आपका
डिक्रीज हो गया. सो फर्दर आई एम समराइजिंग इट कि हाउ दिस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वर्क्स. दिस व्हेन देयर इज अ स्टिमुलस ऑफ डीपोलराइजेशन, जब डीपोलराइजेशन होता है तो कैल्शियम आयन अंदर आते हैं. हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का क्या काम है? ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमारे बाइंड करते हैं अल्फा 1 सब यूनिट ऑफ L टाइप कैल्शियम चैनल एंड इट इनहिबिट्स द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, यानी इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम को ये इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन डिक्रीजेज इन द कार्डियक सेल and thus muscle contractibility or muscle contraction will get decrease. So this is the process how the calcium channel blocker work. They अगर एक लाइन में हम बोलना चाहें, they just bind to the alpha 1 subunit of L type calcium channel and inhibits the influx of the calcium, inhibits the calcium influx in the cardiac cells. Okay. So I think I made myself clear on the mechanism of action. So now we will discuss about the drugs which is mentioned in your syllabus. In your syllabus, it is mentioned that you have to study the structure, mechanism of action and uses of certain drugs. In semester examination, most of the time the question is like write the structure, mechanism of action and use of this पर्टिकुलर ड्रग, या फिर वो पूछ लेंगे कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड वेरापामिल का स्ट्रक्चर एंड यूज़ बता दीजिए. तो अगर हमें क्लासिफिकेशन लिखनी होगी तो हम केमिकल क्लासिफिकेशन ये मेंशन करेंगे कि हमारा जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है अकॉर्डिंग टू द केमिकल क्लासिफिकेशन वी हैव क्लासिफाइड द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इनटू द फिनाइल एल्काइलामीन, 1,4-dihydropyridine and benzodiazepine. And further first generation and second generation, because second generation is better in terms of pharmacokinetic activity and vascular selectivity. And then हम अगर वेरापामिल की स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं तो दिस वेरापामिल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 aromatic ring. It consists of 2 aromatic ring which is connected. ये दोनों रिंग्स कनेक्टेड है. किसके थ्रू कनेक्टेड है? एक फ्लेक्सिबल चेन के थ्रू कनेक्टेड है जिसके अंदर एक नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट है. सो बेसिकली इट हैज़ वेरापामिल की स्ट्रक्चर अगर हमें याद रखनी है या हमें समझना है कि स्ट्रक्चर को हम कैसे रिटेन करें तो हमें ये पता है कि वेरापामिल के अंदर 2 एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है और ये किससे कनेक्टेड है? ये फ्लेक्सिबल चेन से कनेक्टेड है विद अ नाइट्राइट सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, विद अ नाइट्राइट, दे आर कनेक्टेड विद अ नाइट्राइट सब्स्टिट्यूएंट जिसके अंदर प्रेजेंट है. जो आपका वेरापामिल होता है, वेरापामिल एक्ट on cardiac muscles and mainly used for the treatment of or used in the treatment of arrhythmia. This verapamil dilates arterioles and has some alpha adrenergic blocking activity also. So these verapamil we use in the treatment of angina, we use it in the treatment of supraventricular tachyarrhythmia and we use it in mild to moderate hypertension. Why? Because it is causing arterioles dilation. या हमें ये डायलेशन कर रहा है और हमें वो अचीव हो रहा है, इसलिए हम इसको एंजाइना, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकियरिथमिया और माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन के अंदर इसको हम यूज़ कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट ड्रग इज बेप्रिडिल हाइड्रोक्लोराइड. बेप्रिडिल हमने यहाँ पे देखा था कि जो ये बेप्रिडिल है, दिस इज अ सेकेंड जनरेशन ऑफ ड्रग रिलेटेड टू द क्लास फिनाइल एल्काइल अमीन. ओके, सो दिस इज बेप्रिडिल हाइड्रोक्लोराइड. बेप्रिडिल की कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है इसका के साथ सॉल्ट है. सो द स्ट्रक्चर ऑफ बेप्रिडिल you can see this is a tertiary amine. In the structure you can see it is a tertiary amine. Okay, and this tertiary amine in which the substituents on the nitrogen are benzyl group, phenyl group and a member and a 3 pyrrolidine propyl. This pyrrolidine ring is also over there. So it is a tertiary amine in which the substituents on the nitrogen atom are the benzyl group, phenyl group and 3,2-methoxy 2-pyrrolidinyl propyl group. Okay, and it is basically in one line we can say it is a tertiary amine and a member of pyrrolidine.
okay, and it is very long acting drug, and we use it in the treatment of angina, and it is used to treat hypertension. Okay, so bapridyl hydrochloride, the structure is clear, the nitrogen is tertiary, and we can say that the bapridyl, it is a tertiary amine and a member of pyrrolidine, and is long acting, it is used to treat angina as well as it is used to treat hypertension. Next, it is diltiazem. Diltiazem, if you remember, diltiazem is a drug of class which is related to benzothiazepine derivative. कौन सा derivative है इस benzothiazepine derivative? Benzothiazepine, thia means sulfur, so here it is sulfur group is there, azathiazepine, aza group for nitrogen, benzene group इसके अंदर present है, तो it is benzothiazepine derivative. So diltiazem is a benzothiazepine derivative, it acts on both cardiac and smooth muscles. ये दोनों के ऊपर काम करता है, ये cardiac और smooth muscle दोनों के ऊपर act करता है diltiazem, and it should not be given to the patients with like उन पेशेंट्स को हमें इसको नहीं देना चाहिए जो पेशेंट्स ऑलरेडी जिनको प्री एग्जिस्टिंग साइनस है या एवी नोडल या मायोकार्डियल डिजीज़ ऑलरेडी जिनको हैं, उनको हमें ये diltiazem नहीं देना चाहिए, ये क्योंकि खुद भी मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है. सो दिस इट इज़ बेसिकली diltiazem इज़ यूज्ड टू ट्रीट वेरिएंट एंजाइना, and it is also used to treat mild to moderate arterial hypertension. So diltiazem का यूज़ है वेरिएंट एंजाइना को ट्रीट करने के लिए, और माइल्ड टू मॉडरेट, अगर सीवियर कंडीशन है तो हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, माइल्ड से मॉडरेट कंडीशन के लिए हम इसको आर्टीरियल हाइपरटेंशन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज निफिडिपिन. निफिडिपिन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? इट बिलोंग्स टू 1,4-dihydropyridine. तो दिस निफिडिपिन इज 1,4-dihydropyridine derivative. So nifedipine is 1,4-dihydropyridine derivative. This act on smooth muscle, nifedipine act on smooth muscle, and it used to treat hypertension. निफिडिप इसके अंदर हम ये मानते हैं डाईहाइड्रोपायरिडीन है, तो एक ये जनरल ग्रुप है, इसके अंदर आपका एक डाईहाइड्रोपायरिडीन न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, मीन्स ये इस तरह से एक न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है. ठीक है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर लेके हमने आगे मॉडिफिकेशन करे हैं. ओके, सो दिस इज डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग जो सॉरी this is dihydropyridine ring is present. Okay, so this it causes relaxation of the blood vessels and it increases the ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि इस्कीमिक स्टेट में क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की सप्लाई उसके लेवल की नहीं हो पाती है. तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ऑक्सीजन का लेवल जो हार्ट को पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है. तो उस केस में जो निफिडिपिन है, इट इंक्रीजेज द ऑक्सीजन टू द हार्ट एंड रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द हार्ट के वर्कलोड को ये डिक्रीज कर देगी. ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू ट्रीट द vasospasmatic angina as well as classical angina pectoris. Vasospasmatic angina वो एंजाइना होता है जिसके अंदर जो पेन एंजाइना को हो रहा है, दैट इज़ ड्यू टू द vasospasm in the vessels. So it is used to treat vasospastic angina as well as in the classical angina pectoris, and it is used to treat hypertension. यानी इंक्रीज ब्लड प्रेशर है किसी को, तो हमें डायलेशन करना है, हमें उसके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना है, डिक्रीज़ करना है, यानी एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट की तरह हम इसको निफिडिपिन को यूज़ करते हैं. अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जो निफिडिपिन का मेन साइड इफ़ेक्ट है तो इसका मेन साइड इफ़ेक्ट है कि ये एंकल जॉइंट्स को स्वेल कर देता है एंड जॉइंट पेन कॉज कर देता है और रैशेस कॉज कर देता है. तो दिस इज़ द मेन
मेन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द निफिडिपिन। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है। तो ये नाइट्रो ग्रुप इसकी एक्टिविटी बेसिकली ये जो हमारा 1,4-डाइहाइड्रोपायरिडीन न्यूक्लियस है ये तो एसेंशियल है ही एक्टिविटी के लिए, कि जो हम ये चाह रहे हैं कि ये एंजाइना के अंदर यूज़ हो, उसकी एक्टिविटी अच्छी हो, तो उसके लिए 1,4-डाइहाइड्रोपायरिडीन रिंग तो ज़रूरी है ही है। उसके साथ साथ जो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करें, यहाँ पे आपको नाइट्रो ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये नाइट्रो ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी पोजीशन को ऑर्थो से बेटा पे चेंज कर देंगे तो इट विल कॉज मतलब एक्टिविटी जो भी होगी इसकी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी अदर ग्रुप से तो आपकी निफिडिपिन की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। एंड अगर इस रिंग को, ये आपको जो रिंग दिखाई दे रही है फिनाइल या बेंजीन जो भी आप इसको बोलें, अगर आप इस रिंग को किसी हेट्रो एटमिक रिंग के साथ एक्सचेंज कर दें, मतलब इसके अंदर कोई भी कार्बन के अलावा कोई भी एटम इंट्रोड्यूस कर दें, कार्बन इंट्रोड्यूस कर दें, नाइट्रोजन, सल्फर, कोई भी हेट्रो एटम अगर आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो थेरेपेटिक इफेक्ट तो उसका सेम रहता है, बट उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसीलिए हम ऐसा कोई भी मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर के अंदर नहीं करते जिसके अंदर हमें इस ग्रुप के अंदर कोई भी हेट्रो एटम को इंट्रोड्यूस नहीं करते, ताकि वो क्योंकि वो टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट निफिडिपिन। आई थिंक द स्ट्रक्चर इज़ क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज वन मोर थिंग, अगर हम इस नाइट्रो ग्रुप को क्लोरो ग्रुप या किसी अदर ग्रुप से एक्सचेंज कर देते हैं तो भी एक्टिविटी, एक मैंने बताया था कि अगर ऑर्थो पोजीशन से मेटा पोजीशन पे कर देंगे तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, अगर हम नाइट्रो ग्रुप को क्लोरो ग्रुप से भी अगर हम चेंज करते हैं देन ऑल्सो एक्टिविटी गॉट डिक्रीज। तो हमें ये निफिडिपिन की जो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमें पायरिडीन न्यूक्लियस 1,4-डाइहाइड्रोपायरिडीन रिंग इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। आई थिंक द स्ट्रक्चर इज क्लियर। आपको स्ट्रक्चर ही और यूजेस हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर एक तो आप जब क्लासिफिकेशन लर्न करेंगे, जब आपकी क्लास लर्न है, क्लास का एग्जाम्पल आपको याद है, तो एग्जाम्पल याद है तो आपको खुद से मतलब फिनाइल अल्काइल अमीन है तो आपको पता रहेगा कि 2 एरोमेटिक रिंग है, उनके साथ आपको एक दोनों को कनेक्ट करना है एक चेन्स के साथ। अगर वो 1,4-डाइहाइड्रोपायरिडीन आपको याद है कि निफिडिपिन 1,4-डाइहाइड्रोपायरिडीन का एग्जाम्पल है, तो आपको ये याद है कि बेसिक न्यूक्लियस क्या है, 1,4-डाइहाइड्रोपायरिडीन। फिर आपको ऑटोमेटिकली अगर आपने स्ट्रक्चर को एक बार भी बनाया है तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि 1,4-डाइहाइड्रोपायरिडीन के साथ आपको क्या क्या फर्दर ग्रुप्स अटैच करने हैं। स्ट्रक्चर एक्टिविटी आपके सिलेबस में नहीं है, वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस। सो द नेक्स्ट ड्रग इज amlodipine. If you see, this amlodipine is fully saturated, it is fully substituted diallyl 1,4-डाइहाइड्रोपायरिडीन। ठीक है, ये पूरा ही सब्सटीट्यूटेड हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो आप इस स्ट्रक्चर में क्या क्या देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक 1,4-डाइहाइड्रोपायरिडीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साथ में इसके अंदर एक ये वाली आप देखिए मोनोक्लोरो बेंजीन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, प्लस एक इथाइल एस्टर प्रेजेंट है और एक मिथाइल एस्टर प्रेजेंट है। ठीक है, और फर्दर इसके अंदर एक प्राइमरी अमीनो कंपाउंड, दिस इज प्राइमरी अमीन ग्रुप एंड दिस इज प्राइमरो अमीनो कंपाउंड। तो इसके अंदर आपने देख लिया कि 1,4-डाइहाइड्रोपायरिडीन न्यूक्लियस कनेक्टेड विद मोनोक्लोरो बेंजीन, मिथाइल एस्टर, इथाइल एस्टर एंड 1 प्राइमरी अमीनो कंपाउंड। तो ये 4 चीज़ें मिलके आपकी जो स्ट्रक्चर बनाया वो किसकी बनाई, एम्लोडिपिन की। ठीक है, दिस एम्लोडिपिन इज हैविंग वेरी स्लो ओरल एब्जॉर्प्शन एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट क्रोनिक स्टेबल एंजाइना। तो हम एम्लोडिपिन को यूज़ करते हैं टू ट्रीट क्रोनिक स्टेबल एंजाइना एंड इन द मैनेजमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट एसेंशियल हाइपरटेंशन। माइल्ड से मॉडरेट अगर हम किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, माइल्ड उसका लेवल माइल्ड टू मॉडरेट के बीच में है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम एम्लोडिपिन का यूज़ करते हैं। और किस लिए यूज़ करते हैं, टू ट्रीट, किसके ट्रीटमेंट में, फॉर द क्रोनिक स्टेबल एंजाइना। और स्ट्रक्चर के अंदर 4 चीज़ें क्या हैं, 1,4-डाइहाइड्रोपायरिडीन, मोनोक्लोरोबेंजीन, मिथाइल एस्टर, इथाइल एस्टर एंड प्राइमरी अमीनो कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ऑफ फैलोडिपिन।
इस स्ट्रक्चर के अंदर भी हमने ये बताया था क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर कि फर्स्ट जनरेशन निफिडिपिन है और सेकेंड जनरेशन एम्लोडिपिन, फाइलोडिपिन, निकार्डिपिन, ये सब सेकेंडरी जनरेशन किससे जनरेट हुई है, निफिडिपिन को बेस मान के इनका जनरेशन किया गया है। अब वही स्ट्रक्चर आप देखिए निफिडिपिन की कॉमन है, 1,4-डाइहाइड्रोपैरिडीन है, उन्हीं के ऊपर हमने मॉडिफिकेशन किया है। नेक्स्ट इज फेलोडिपिन। फेलोडिपिन हियर ऑल्सो it is structure consists of 1,4-dihydropyridine, this is 1,4-dihydropyridine and a dichlorobenzene, this is dichlorobenzene and a ethyl ester and a methyl ester, और दो मिथाइल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल्सो 1,4-dihydropyridine जिसके अंदर डाइक्लोरोबेंजीन है, मिथाइल एस्टर, इथाइल एस्टर प्रेजेंट है और दो मिथाइल ग्रुप अपनी पोजीशन पे प्रेजेंट है। जो ये फेलोडिपिन है ये बहुत ही ज़्यादा बेटर वेस्कुलर, इसकी फेलोडिपिन की बहुत अच्छी, हम कह सकते हैं बेटर वेस्कुलर सेलेक्टिविटी होती है एज़ कम्पेयर टू निफिडिपिन। तभी ये क्या है सेकेंड जनरेशन उसकी मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अब इसको हम फेलोडिपिन को यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन। माइल्ड से मॉडरेट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम फेलोडिपिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज निकार्डिपिन। निकार्डिपिन का दूसरा नाम हम कार्डीन की भी कहते हैं, निकार्डिपिन को कार्डीन भी कहा जाता है। इसकी स्ट्रक्चर आप देखें, अगेन इट इज़ अ 1,4-डाइहाइड्रोपैरिडीन डेरिवेटिव या इट इज़ अ सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रोफिनाइल पायरिडीन। दिस इज पायरिडीन 1,4-डाइहाइड्रोपैरिडीन एंड इट इज़ नाइट्रोफिनाइल। जब बेंजीन का एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाए तो हम उसको फिनाइल बोलते हैं। तो इस बेंजीन का एक हाइड्रोजन एटम की जगह यहाँ पे क्या लगा है, नाइट्रो ग्रुप, तो ये क्या हो गया, नाइट्रोफिनाइल। तो वी कैन कंक्लूड इज अ सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रोफिनाइल पायरिडीन। इसके जो एनेंशियोमर्स होते हैं, इसका जो एस एनेंशियोमर होता है दैट इज मोर एक्टिव एज कंपेयर टू द आर एनेंशियोमर, ठीक है। जो निकार्डिपिन होता है ये इसका इन सब का मैकेनिज्म सेम है कि ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स को ब्लॉक कर रहे हैं और कैल्शियम की एंट्री इनहिबिट हो रही है और जो हमारी हार्ट मसल्स हैं वो रिलैक्स हो रही हैं। सो इट इज़ यूज इन द मैनेजमेंट, जो निकार्डिपिन का यूज़ है इट इज़ यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ स्टेबल एंजाइना एंड इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर hypertension. I think this is clear, the structure is clear. Next is nimodipine. Nimodipine again is an also an dihydropyridine derivative and it is an analog of obviously calcium channel blocker with antihypertensive activity. So you can see the structure, nimodipine is a 1,4-dihydropyridine in which it is substituted with methyl group at 2 and 2nd position, 6th position, 2nd और 6th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है 3rd पोजीशन के ऊपर एंड नाइट्रोफिनाइल ग्रुप एट द पोजीशन ऑफ 4. So this is the structure of nimodipine and this nimodipine is also second generation drug of 1,4-dihydropyridine and it is used in the cerebral blood vessel more effectively and thus indicated in the treatment of subarachnoid hemorrhage associated with neurological defect. ये क्यों है? क्योंकि जो ये निमोडिपिन होता है इसका लाइपोफिलिक करेक्टर अच्छा होता है एंड इट इज़ हैविंग द कैपेसिटी टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इसीलिए इसका जो निमोडिपिन का एक्शन है वो मोर है सेरिब्रल blood vessels पे as compared to the smooth vessels. So I conclude the nimodipine use as it dilates the cerebral blood vessel more effectively and thus indicated nimodipine is indicated for the treatment of subarachnoid hemorrhage which is associated with neurological defects. And why? Because it is more lipophilic, it can cross blood brain barrier. Thank you. These are the references. And thank you. I think it is a good session and you have learned a lot.